मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पढ़ें Luke chapter 14, लूका उसका 14 अध्याय 13 to 24. 13 से लेके 24 तक। लूका 14 13 से 24। लूक Have you carefully studied it? क्या आपने ध्यान से उसे अध्ययन किया है? This incident occurred where? और ये जो घटना कहाँ पर हुई? 13:1. 13 का 1। Read. On a day of worship, Jesus went to eat at the home of a prominent Pharisee. So it happened in that house. और वो घर में ये बात हुआ। While they were having meal, और जब वो लोग खाना खा रहे थे all were sitting like this. और सब लोग ऐसे बैठे थे, He was teaching them how to go and take seats in the meal. और वो सिखा रहा था कि खाने के समय में कैसे जाकर आपको बैठना है। That he taught. Then he said to the house owner how to invite people. और उसके बाद जो है मालिक को कहा कि कैसे लोगों को आमंत्रण देना है। 13 and 14. Next person. 13 और 14। But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous. So, he was teaching how to invite people for a meal. तो वो सिखा रहा था कि कैसे भोज के लिए लोगों को आमंत्रित करना है। 15th verse. 15 वचन। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे। So, when he heard this, what he was telling, one of them sitting in the meal replied to him. और जब उन्होंने सुना कि ऐसा कहा गया है और भोज में जो एक बैठा था उसने उसको प्रति उत्तर दिया, If you are the one who was sharing that, what are you telling? अगर आप इस बात को बांट रहे हो तो आप क्या कह रहे हो? Suppose that sentence comes from you, what are you telling? अगर समझ लो ये जो वाक्यांश आपकी तरफ से आ रहा है तो आप क्या कह रहे हो? Now, what are you telling then? What is you are communicating? आप क्या बात को बताना चाह रहे हो वहां पर? Okay, I'll be there. मैं वहां पे रहूंगा। Any other? दूसरा और कोई? You must be part of the gospel and think what is he trying to tell. और आपको भी सुसमाचार का भाग बनना है और सोचना है कि वो क्या कहना चाहता है। When he talks about heaven and resurrection, what will be? How will you respond? जब वो स्वर्ग और पुनरुत्थान के बारे में बोलता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? This man said, which? पवित्र हो। Okay. Any other? दूसरा और कोई? But it's not a big problem or simple thing. ये कोई बड़ी समस्या नहीं, ये एक साधारण सी बात है। Hmm? If you are telling, what are you telling? अगर आप बोल रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो?
What are you expressing? क्या आप जो है जता रहे हो या बोल रहे हो? What is in your heart? क्या आपके हृदय में है? I will have fellowship. संगति होगी मेरी। That is your desire. इच्छा है। Then, or your desire, or what else? आपकी सारी इच्छाएं और क्या? Your professor is talking about examination and then postgraduate studies. और आपका जो प्रोफेसर है वो परीक्षाओं के बारे में और पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन के बारे में बता रहा है, He's talking about the chances there. और वो अवसरों के बारे में बता रहा What will है। you say immediately? आप क्या कहोगे तुरंत? Sir, what a nice thing it will be to get admission. सर कितना अच्छा होगा कि वहाँ पर दाखिला मिल जाए तो। So what are you telling? तो आप क्या कह रहे हो? Your desire आपकी इच्छा है, or your expectation. मेरी उम्मीद, Then, my wish, मेरी चाहत, my plan. मेरी योजना। So what is this you think? What he was telling? तो आप क्या सोचते हो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? His desire is talking. और उसकी इच्छा है बात करना। Maybe. शायद, Or he is sure of it. क्या उसके बारे में उसको एकदम पक्का है? He's talking about his desire अपनी इच्छा के बारे में or even decision. और निर्णय के बारे में। How blessed it will be. कितना आशीषित होगा वो। He was telling whom? Jesus Christ. वो किससे कह रहा था? यीशु मसीह से। How did Jesus Christ respond to this? और यीशु मसीह ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी? Next two verses. अगला वचन। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। Okay. He told this parable to whom? ये दृष्टांत किसको कहा गया है? No. To this man. You read. और वो व्यक्ति के लिए है। Read carefully. तो ध्यान से आप पढ़ें। He told that man. और उसने उस व्यक्ति से कहा। So he told that man. उस व्यक्ति से कहा, See, a great feast was prepared. एक बड़ा भोज जो है तैयार किया गया। In that two verses, इन दो वचनों में how many times these people were invited? कितने बार उन लोगों को आमंत्रण मिला? Watch. इन दो वचनों में देखो। Twice. दो बार। Okay? You see that twice? आप दो बार देख सकते हो उसे। Did they all agree to come at the first invitation? क्या उन्होंने सहमति जताई कि वो पहले आमंत्रण में आएंगे? Hmm? Yes, they all said this. That's why the feast is prepared. हाँ, उन्होंने सहमति जताई, इसलिए भोज तैयार किया गया। You also invite for your wedding. आप भी अपनी शादी के लिए आमंत्रण देते First, हो। will you be able to come? Will you be able to come? Yes, yes. We will. क्या आप आ सकते हो? क्या आप आ सकते हो? हाँ, हम आ सकते हैं। हाँ, हम आ सकते हैं। Then, according to the number you have planned, you prepare. और उसके संख्या के अनुसार आप फिर योजना बनाते हो। Here, second invitation was sent. It is all ready. Now come. और जो दूसरा आमंत्रण ये जो है अभी आ चुका है। Now, suppose you are in the church, and the announcement is food is ready. Now come. और मान ले कि आप कलीसिया में हैं और अब तभी एक जो है सूचना होती है, खाना तैयार है, आ जाओ। They did not come. वो नहीं आए। Second invitation, they did not come. दूसरे आमंत्रण में भी नहीं आए।
So, what is this first invitation and second invitation? पहला आमंत्रण और दूसरा आमंत्रण ये क्या है? All of you sitting here, आप सब जो यहाँ बैठे हुए हो, you all agreed to follow Jesus Christ once in your life. पहले एक बार आपके जीवन में आपने ये निर्णय लिया कि आप यीशु मसीह के पीछे हो लोगे. You did or not? आपने ऐसा निर्णय लिया था कि नहीं लिया? How many of you decided? कितने लोगों ने ये निर्णय लिया था? Yes. What is the second invitation? दूसरा आमंत्रण क्या है? Hmm? What's the second invitation? दूसरा आमंत्रण क्या है? Think, what do you think? सोचें जरा, आप क्या सोचते हो? Hmm? Practical life. प्रायोगिक जीवन. What happened in the practical life? क्या हुआ प्रायोगिक जीवन में? Hmm. No, practical living, what happened during these days? प्रायोगिक जीवन जो अभी आपका कैसा चल रहा 6 है? years before you made a decision to follow, then so far what happened? 6 साल पहले आपने निर्णय लिया कि आप उसके पीछे हो लोगे, अभी तक क्या हो पाया है? Eh? I am busy with my things. Okay. What are your excuses or what are the things that are preventing you from following? आपके क्या क्या बहाने हैं और क्या क्या चीज आपको रोक रहे हैं कि आप उसके पीछे ना हो लें? Understand? समझ रहे हो? Write a list of things that are और सूची preventing. बनाएं बहानों की, और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं यीशु मसीह के पीछे चलने में. Write a list. एक सूची बनाएं, As you write, you mention one each. और जैसा आपने लिख दिया है तो वो एक को जो लिखा है उसे पढ़ दें. My friends. मेरे दोस्त. Then और another. दूसरा कोई बोलेगा? Responsibility. उत्तरदायित्व, Work. काम. Right. Another. दूसरा Children. बच्चे, Study. अध्ययन, Hmm? माय डिजायर्स. One एक इच्छा बता दो. shopping. Buying things. चीजों को खरीदना. இல்லை என்ன தடை வந்துச்சு வேர்ல்டில் ஒன்று சொல்லு Okay, marriage. शादी एक Yes, I wanted to come after that. You got married. All of you got married. And same problem has happened. Why are you laughing? तो इसमें हंसने की जरूरत नहीं, आप सबने भी शादी की और आप भी उसी में आ गए हो, उसी रुकावट में फंस गए हो. Then, what are the other things? और दूसरी और क्या चीजें हैं? You have to know what is preventing you. आपको जानना है कि आपको क्या रोक रहा है. Knowledge. ज्ञान. Gadgets. और जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. Social media. और सामूहिक मीडिया. Girlfriends. और लड़कियां जो दोस्त हैं. No time for anything else. और किसी के लिए भी समय नहीं है. Okay. Give more time to lover, my lover. Okay. Then और hobby. What hobby? Reading. और आपकी जो है इच्छाएं जो हैं, जैसे पढ़ना, किताबें पढ़ना, Stories. कहानियाँ. Then
कंपटीशन, competition. With what? स्पर्धा, किसके साथ स्पर्धा? The workplace. Climb the ladder. सीढ़ी को चढ़ना, Okay. Eating. Make nice dishes and eat. क्या? और अच्छे अच्छे खानों को बनाओ और खाओ। Then Worry, hotel, others. honor from bad. मनुष्यों से आदर, Social activities. Social activity one. Party, marriages. Parties and marriages. शादी और पार्टियां। So there are a lot of parties. देहरादून में बहुत सारी पार्टियां हैं। Okay. Some will say, I bought a bike. कुछ लोग कहेंगे मैंने एक बाइक खरीदा, I bought a car. मैंने एक कार खरीदा, I bought a dog. मैंने एक कुत्ते को खरीदा, I started some agriculture. मैंने कुछ खेती बाड़ी शुरू की, I started shuttle badminton. मैंने जो है शटल बैडमिंटन खेलना शुरू I किया, began to go to gymnasium. मैंने जिम व्यायामशाला में जाने का सोचा, Then I got a promotion. मुझे एक पदोन्नति मिला, Eh? Ministry. सेवकाई। So what other things for all of you? और आपके लिए और क्या चीजें हैं? और Travel. यात्रा करना, Travel is how everybody has to travel. सबको यात्रा करना है। Hmm? साइट सीइंग, Sightseeing. Sona. ऑर्नामेंट्स, Oversleeping. ज्यादा सोना, Oversleeping, overeating. ज्यादा Lazy- खाना, There comes one. Laziness. आलसीपना, Low BP. कम रक्त दबाव, Vertical or horizontal, always want to sleep. सीधा हो या लंबाई की ओर हो, हमेशा आपको सोना ही है। How old are you? 70? कितना उम्र है आपका? 80. 18। 80 or 70? Why एक, are you so tired? आप इतना क्यों थक चुके हो? They all came for one day walking and then they got tired. और वो एक दिन जो है वो टहलने के लिए आए, उसके बाद वो लोग थक गए। At this age, you must be running around. मैं आपको तो दौड़ना चाहिए इधर उधर। All this have come. What happened now? अब ये सब आ गया है, अब क्या हो गया? Following has stopped. और पीछे चलना जो है रुक गया है। So do you know what the Lord told that man? तो आपको मालूम है कि प्रभु ने उस मनुष्य से क्या कहा? Verse 24. 24वां वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। English? अंग्रेजी में, For I tell you, not one of those men who were invited will enjoy my banquet. To whom does he tell this? और ये किसको कहा है उसने? Just leave. Not to you. आपसे नहीं। Here is the slave. When you read it, it's for whom? जब आप पढ़ते हो तो किसके लिए है ये? So what is he telling you? तो वो आपसे क्या कह रहा है? You have a desire to come. You have even decided to come. But the Lord is telling, you will not even taste my supper. और आपके अंदर एक इच्छा है आने की, आपने निर्णय लिया है आने का। प्रभु कहता है कि तू मेरे भोज को चख भी नहीं पाएगा। When you hear that, what is your inner response? जब आप इसको सुनते हो, आपके अंदर की प्रतिक्रिया क्या है? ருசி கூட பார்க்க மாட்டோமான்றார். आप चख भी नहीं पाओगे, क्या है? இல்லாட்டா போட்டு பரவாயில்ல, நான் வேற சாப்பிட்டுக்கிறேன் இல்லையா? हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं दूसरा कुछ और खा लूंगी।
What's your response? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? Hmm? That's all. खाली निराशा है? It is a repeat. First year students, 100 of them, principal calls all of them. पहले साल में पढ़ने वाले बच्चे लोग और 100 हैं और प्रिंसिपल सबको बुलाता है। Last 10 years, from each batch, only 2 people have passed. और पिछले 10 सालों में 2 बैचों में से केवल 10 ही पास हुए हैं। No, from every batch. हर बैच में से 2 ही पास हुए हैं। What will be you thinking? आप क्या सोचोगे? Sir, can you give me a TC? I am going. क्या सर आप मेरा नाम को काट दोगे? मेरे को यहाँ से जाना है। When you want to write for IIT exam, when do you start preparing? जब आपको IIT की परीक्षा लिखनी होती है तो आप तैयारी कब शुरू करते हो? 12th standard, no? 12वीं कक्षा में? Hmm? Some people start even before that. कुछ लोग तो उससे पहले भी शुरुआत कर देते हैं। Why? क्यों? The test is very tough. परीक्षा जो काफी कठिन है। When the Lord says, all those who are invited will not be able to taste my supper even. जब प्रभु कहता है जिन जिन को आमंत्रित किया गया है वो मेरे भोज को चख भी नहीं पाएंगे। 13th chapter, 24th verse. 13 का 24। Strive to enter through the narrow gate, for many, I say to you, will seek to enter and will not be able. When you are, all of you are young, आप सब जवान हैं। when you want to go and watch football match, जब आपको जाकर फुटबॉल मैच देखना है, suppose it's World Cup, मान लो कि ये जो है विश्व कप है the queue is so long, और कतार काफी लंबी है, what will you do? आप क्या करोगे? Eh? You will try to buy a ticket at any price. और आप जो है कितना भी पैसा देकर टिकट लेने की कोशिश करोगे। Why? क्यों? You want it. क्योंकि आपको अंदर प्रवेश करना है। Now you know God has invited you for a meal. और आपको अभी मालूम है कि परमेश्वर ने आपको एक भोज के लिए आमंत्रित किया है। What have you done? आपने क्या किया? I told you the other day. 3 people are standing there to hit you. मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि 3 लोग वहां पर खड़े हैं आपको मारने के लिए, But you want to enter. लेकिन आपको प्रवेश करना है। What have you done? आपने क्या किया है? Your car is preventing, your mobile is preventing, your TV is preventing, your friends are preventing, various things are preventing. What will you do now? आपका कार, टीवी, मोबाइल सब आपको रोक रहा है, तो आप क्या करोगे? अब So far, what did you do? अभी तक आपने क्या किया? You join with them. आप उनके साथ शामिल हो गए। What happened? क्या हुआ? You are seeing the meal in the TV. आप जो है खाने को टीवी में देख रहे हो। Very good. Eat nicely. अच्छा खाना है, आराम से आप खाओ उसे। You are listening to messages. आप संदेश को सुन रहे हो, You are singing songs. आप गीत गा रहे हो, You are going to church. आप कलीसिया जा रहे हो, But you are not eating it. लेकिन आप जो है खाना नहीं खा रहे। Can you eat food in the paper? क्या आप खाने को एक पेपर में खा सकते हो? Can you lead a theoretical Christian life? क्या आप एक सैद्धांतिक मसीह जीवन जी सकते हो? Is it reality and practical? क्या ये सच्चाई में है और प्रयोग में है? Is your Christian life real? क्या आपका मसीह जीवन सच्चा है?
Is it real? क्या सच्चा है? Is your relationship with both of you theoretical? क्या आप दोनों के बीच का रिश्ता सैद्धांतिक है? Is your relationship with Jesus Christ is real? क्या आपके साथ यीशु मसीह का जो रिश्ता है वो सच्चा है? Is it real? क्या सच्चा है? How real it is? आपको कैसे मालूम है? Are you enjoying the meal? क्या आप आनंद उठा रहे हो भोज का? Eh? Going behind the crowd. Ah. Yes. Are you eating the meal or are you eating the crumbs? क्या आप भोज को खा रहे हो कि आप टुकड़ों को खा रहे हो? Oh, very nice. बहुत अच्छा। One chicken piece I got. एक चिकन का टुकड़ा मेरे को मिल गया Hey, on that chicken piece there was little meat. और वो चिकन के टुकड़े में थोड़ा मांस भी The था jalebi piece came. और जिलेबी का जो टुकड़ा आया Nice. अच्छा है। Once I was traveling in a train to Delhi. और एक बार मैं यात्रा कर रहा था दिल्ली There was की a ओर, rubbish heap. और एक बहुत ही गंदगी का एक जो पहाड़ था On the top of that, one boy was standing. और उसके ऊपर गंदगी के ऊपर एक लड़का खड़ा था He was waving us और वो अपने हाथ को दिखा रहा था and showing his victorious thing we got. और वो अपना विजयी जो बात बता रहा था कि वो पहुंच गया इधर ऊपर। One bottle, एक बोतल, a Bisleri bottle. एक बिस्लेरी का बोतल, That's the treasure he got from the mount. और जो गंदगी से उसको ये एक जो है धन मिला। What are we showing? हम क्या दिखा रहे हैं? The watch I bought, जो घड़ी में लेके आया हूँ, the car I had. जो कार मेरे पास था। Remember, it's all rubbish. और याद रखिए ये सब जो है एकदम बेकार है, Crumbs. टुकड़े हैं। When he has kept for us the greatest treasure, are you satisfied with crumbs? क्या जब उसने आपके लिए जो है बड़े धन रखे हुए हैं तो क्या आप टुकड़ों से संतुष्ट हो? Desire and decision, इच्छा और निर्णय till it becomes reality, जब तक ये सच्चाई ना बन जाए it is hanging in the air. ये हवा में लटका हुआ है। Want to eat this chocolate? ये चॉकलेट को खाना चाहते हो? It's written chocolate. इसमें लिखा है चॉकलेट। Nice. ये Nice. अच्छा You है। want to have it? ये चाहिए अब। This is biryani. ये बिरयानी है। Want to eat? क्या आपको खाने को चाहिए? You will be angry, no? अभी आप गुस्सा हो जाओगे ना? God has prepared the greatest treasure for us, and you are running after. परमेश्वर ने आपके लिए जो है महान धन रखा है और आप भाग रहे हो। Christian life is theoretical. मसीह जीवन जो है सैद्धांतिक है। So he told him a parable. फिर उसने एक दृष्टांत उन्हें बताया That's the parable which we read. और वही जो दृष्टांत जो हमने पढ़ा। Why they were not able to come. क्यों वो जो नहीं आ पाए? See, this also desire. जो इच्छा है, Suppose somebody borrowed money from you. मान ले आपसे किसने पैसा उधार लिया Whenever you meet him and say, next Monday I will return. और जब भी आप उससे मिलते हो कहते हैं अगले सोमवार को मैं दे दूंगा। I have decided to return, brother. मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा Monday. सोमवार को। After 4 Mondays, what will you say? और 4 सोमवार बीत गए फिर भी नहीं मिला। പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. क्या बोलोगे जरा बोल दो। He is coming and say, next Monday, what will you say? वो आके दोबारा कहते हैं अगला सोमवार।
എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കാണത്തില്ല അടുത്ത ദിവസം. believe क्या आप विश्वास करोगे? उसको बॉम्बे एड़ा मत बना मुझे, ऐसा बोल सकते हैं. when he comes itself you know what he's going to tell. और आप जैसे ही वो आता है तो आपको मालूम है वो क्या बोलने वाला है. next Monday अगला सोमवार को. eh തിങ്കളാഴ്ച വരുന്നു. तो आप क्या बोलोगे? Monday is coming. फिर आप क्या बोलोगे? देखो सोमवार आ रहा है. जब वो आएगा तो Think of somebody proposing to a girl for 5 years. और एक व्यक्ति के बारे में सोचो जो एक लड़की को जो Leave है 5 years, 2 years. 2 साल से जो है Leave 2 years, 2 months. 2 महीने से प्यार का इजहार कर रहा है. What will the girl say? वो लड़की क्या कहेगी? Get lost. चल निकल जा यहाँ से. She won't believe. वो विश्वास नहीं करेगी. A pastor arranged a evangelistic meeting for his church people. अपनी कलीसिया के लोगों के लिए पासवान ने जो है एक सुसमाचार की सभा A रखी. preacher came from outside. एक प्रचारक जो आया बाहर से. Very good meeting. बहुत अच्छी सभा. His final day he gave an altar call. और अंत में जो उसने जो है वेदी में आने की बुलाहट दी. 30 people surrendered for full-time work. और 30 लोगों ने जो है पूर्ण समय सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया. He had meal with the pastor और in the night. पासवान के साथ उन्होंने खाना भी खाया रात में. He said, how nicely you have prepared your church. 30 people surrendered for full-time work. कितनी अच्छी तरह आपने अपने कलीसिया को बनाए रखा है. 30 लोगों ने पूरी तरह सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किया. Pastor said, they are the one who regularly get up for all meetings. और ये वही लोग हैं जो हमेशा हर सभा के लिए उठ के आ जाते हैं. How many times you have made this decision? कितना बार आपने ऐसा निर्णय लिया है? How many meetings you decided? कितनी सभाओं में आपने ऐसा निर्णय लिया है? At least 10? 10 बार तो लिया होगा. Now you sit here, I have decided to come back. और मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं वापस आ जाऊंगा. I have decided to surrender my life. मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा. So near the decision, और जो निर्णय के पास, you must write, this is the 15th decision. निर्णय के पास आप लिख दे ये मेरा 15वां निर्णय है. Then it is all right. फिर वो ठीक है. महत्वाय 15th तीर्मान. और बहुत ही ऊंचा मेरा 15वां निर्णय. Is there any meaning in your decision? क्या कोई भी अर्थ है आपके निर्णय का? Outside, when you go, the path is sometimes paved with bricks, no? और जब आप बाहर जाते हो तो जो रास्ता होता है उसमें ईंटें लगी होती हैं. A man of God said, the way to hell is paved with good decisions. और एक परमेश्वर के दास ने कहा जो स्वर्ग की ओर का जो रास्ता, Path, hell. नरक की ओर का जो रास्ता है वो Stones. अच्छे निर्णय, अच्छे पत्थरों से सजा हुआ है. What stones? Decisions. निर्णय के पत्थरों से. You can talk about your decisions every day and go to hell. और आप अपने निर्णय के बारे में रोज बात कर सकते हो और नरक जा सकते हो. Never believe your decisions. अपने निर्णयों पर विश्वास ना करें. Whom are you deceiving? आप किसको धोखा दे रहे हो? Nicely, cleverly deceiving yourself. और बहुत चतुराई से अपने आप को धोखा दे रहे हो. Many decisions you made, आपने बहुत सारे निर्णय लिए. you write in the bracket, आप उसे जो है ब्रैकेट में लिखें. which number? कितना संख्या है? 16. Count and write. आप गिन के लिखें. Deceiving yourself. अपने आप को धोखा देना. Remember,
Between the cup and the lip, there is always a gap. हमेशा याद रखें, ग्लास और होठ के बीच में एक अंतर है। Till it comes, जब तक वो आ ना जाए, this is desire. ये जो है आपकी इच्छा है, This is reality. ये है सच्चाई है। Theory-या, उन्मया? सैद्धांतिक है या सच्चाई है? When you reconcile with someone, is it reality? जब आप मिलाप करते हो किसी के साथ, क्या वो सच्चाई It है? is reality. वो सच्चाई है। What happened because of that? उसके द्वारा क्या हुआ? Freedom. आजादी। It's not theory. और ये सैद्धांतिक नहीं है। When you made a decision, जब आपने एक निर्णय लिया, did you enjoy something? क्या आपने किसी चीज का आनंद उठाया? Yesterday. कल। Is it reality? क्या ये सच्चाई है? Is it continuing with you? क्या ये आपके साथ निरंतर चल रहा है? Think of that. Otherwise, it's not. इसके बारे में सोचे, नहीं तो फिर वो नहीं है। Look at the hindrances came. देखो जो रुकावटें जो आई हैं बीच में। One is, पहला जो है, I bought a land. आपने एक जमीन खरीदा। Second, दूसरा, auction. बैल। Third, तीसरा, marriage. शादी। What is the Lord trying to teach? और प्रभु यहाँ पर क्या सिखाना चाहता है? Why do you buy land and keep? आप क्यों जमीन को खरीद के रखते हो? Investment. निवेश। What is the investment for? निवेश किसके लिए किया है? Future. भविष्य के लिए। Security. और भविष्य की सुरक्षा के लिए। Security. सुरक्षा। Sureksha. Ah. Who needs security? किसको चाहिए सुरक्षा? Those who don't have security. जिसके पास सुरक्षा नहीं है। What do you call that? उन्हें क्या कहते हैं? Insecurity. असुरक्षित। Now, write 5 security measures you are using to overcome your insecurity. और आप उन 5 सुरक्षा तरीकों को लिखें जिसके द्वारा आप असुरक्षा पर जय पाना चाहते हो। Yes, write 5. 5 को लिखें। There will be many more, but at least write 5. आप अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से 5 तरीकों का इस्तेमाल करते हो असुरक्षा के द्वारा? Okay, uncle, can you repeat in English? To remove your insecurity, you are using many security measures. और अपनी असुरक्षा को हटाने के लिए आप बहुत सारे सुरक्षाओं के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। So, write at least 5 security measures you are using. 5 सुरक्षा के विधियों को आप लिखें, अपनी असुरक्षा हटाने के लिए आप करते हो। Name one. एक जरा पढ़ दे, एक को पढ़ दे जरा। Insurance. बीमा। Another. I keep myself busy always, so I won't think about the. No, that's not a security. Practically. प्रायोगिक में बोले। सेविंग्स। बचत। Where do you have security? कहाँ पर है आपकी When you सुरक्षा? feel insecure, where do you turn to your mind? जब आपको असुरक्षा का एहसास होता है, आपका मन किसकी ओर मुड़ता है? Eh? Make it busy by doing something. That is hiding it. It doesn't give you security. और वो छुपाना है, ये That आपको is false सुरक्षा नहीं देता That is है। false comfort. ये गलत सांत्वना है। Where do you phone up? कहाँ If you पे need आप money? आपको पैसा चाहिए तो कहाँ फोन बुलाओगे? Parents. माता One पिता। security is parents. तो इनकी जो सुरक्षा है वो माता पिता हैं। Then buy house and keep. घर खरीद के रखो। Okay. बाय गोल्ड एंड कीप मोर गोल्ड। Gold and keep. सोना खरीद के रखो। Property. जायदाद, जमीन जायदाद। Children. एंड जॉब।
they will educate children that in future they will. Okay, educate children and security through children. और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना और उनके द्वारा सुरक्षा। That's why when they don't help you, you say, what is the use of bringing you up? जब वो फिर आपको मदद नहीं करते, क्या हो गया तेरे को इधर तक ला कर भी। जल्दी के ऊपर बोझ आया। तो थोड़ा कट हो गया। So burden to that, ये भार है भूमि की वेंटी। What other security? और कौन कौन सी सुरक्षा है? Dog, कुत्ता camera, और कैमरा, eh? ऑर्चर्ड, फार्मिंग, एप्पल Farming, सेब का बगीचा। Yes, yes. हाँ बोल दिया ना। सुरक्षा कर्मी, Lock. ताले, What lock? कौन से ताले? गोदरेज। Godrej. Link. Where do you keep the key? आप चाबी किधर रखते हो? इधर ही लटका के। On the neck. गले में लटका के रखते हो चाबी। Okay. Then what else? और क्या करते हो? Bomb you keep. You don't keep. और बाड़ा बनाना। Boundary wall. हाँ, बाड़ा बनाना। On the wall, what do you keep? और दीवार पर आप क्या रखते हो? Barbed wires. और जो है तारों को आप उसको गोल गोल करके रखते हो। हाँ, उस पर जो है कांच भी डाल देते हैं। Somebody is not climb. Electric. और बिजली की तारे भी उस पर छोड़ देते हो। After all this, you can't sleep. उसके बाद भी आप सो नहीं सकते। Insecurity only increases. असुरक्षा जो है बढ़ जाती है। One person said, I kept all deposits, but I don't know where I kept the papers. एक व्यक्ति ने कहा मैंने सारी जमा राशि करके रखी हुई है, लेकिन उसके कागज कहाँ रखे हैं मुझे पता नहीं। Okay, let's come to next one. हम दूसरी की ओर आएंगे। Read that, 19th verse. 19वां वचन पढ़ेंगे। Another said, I have brought 5 yoke of oxen, Hmm. and I am going to try them out. I ask you to excuse me. How many oxen? कितने जोड़े हैं बैल के? 5 yoke of oxen. How many oxen? कितने बैल हैं? 10. 10 बैल हैं। In North India, when you have lot of animals, what increases for you? अगर उत्तर भारत में आपके पास बहुत सारे जानवर हैं तो आपके पास क्या बढ़ेगा? Your status. आपका जो स्तर है वो बढ़ेगा। Your status is decided by the number of cattle you have. आपका जो स्तर है वो गिना जाता है कि आपके पास कितने जानवर हैं। So status building. और आपका जो स्तर है या स्थान है उसको बढ़ाना। Who needs status? और स्थान किसको चाहिए? Who have inferiority. जिसको जो है कुछ अपने आप में अपने आप को कम आंकता है जो। What are the status making methods you are using? कौन कौन से स्थान बनाने के विधियों का आप इस्तेमाल करते हो? 5 of them you write. 5 को लिखें अपना अपना स्थान बनाने के लिए। आप कौन कौन सी विधियों To का get honor इस्तेमाल from people. ताकि आपको लोगों से आदर मिले। 1. House. House one. What kind of house? घर नहीं, किस प्रकार का घर? मैंशंस। Eh? Number of cars. कारों की संख्या। Then good job means अच्छी नौकरी मतलब naukari. Now you applied for a job. One job 15,000 rupees. आपने जो है नौकरी के लिए जो है दिया है और एक काम में 15,000 रुपए। Another 10,000. दूसरे में 10,000 है तनख्वाह। Which job you will take? आप कौन सी नौकरी में शामिल होंगे? Eh? 15. 15 is peon in a bank. और 15 जो है आप प्यून हो बैंक में।
10,000 is a supervisor in a company. और 10,000 जो है आप एक कंपनी में जो है सुपरवाइजर हो। Now which will you take? अब आप कौन से काम में जाओगे? Why? क्यों? Status, status. Ah. स्थान जो आपका है। So salary alone will not do. और केवल तनख्वाह से बात नहीं जमेगी। Yes. Many of you made decisions on that also. और बहुत लोगों ने निर्णय इस प्रकार से भी लिया है। Yes. So any other method दूसरी और कोई विधि है to build your superiority? अपने जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या स्थान बताने के लिए? Hmm? Education. Where you get education is important. Which college? पढ़ाई आपने कहाँ से पढ़ाई की? St. Stephen's. सेंट स्टीफेंस, MCC, CMC. CMC, MCC मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, IIT. IIT, Which IIT? कौन सा IIT? Kanpur. Right? Like that it goes. Which locality you come from? आप कौन से जगह से आते हो? That's also important. वो भी महत्वपूर्ण है। Then your family name. आपका परिवार का नाम क्या है? मेहता अरोरा। Soon you will not be happy to attach your name to this. जल्दी आप अपने नाम को उससे जोड़ना नहीं चाहोगे। What else? और क्या? What else? और क्या? I am the relative of at MLA. Okay. என் மாமா மகனுக்கு சொந்தம். Okay, வேற? How do you show off? आप कैसे जो है दिखावा करते हो? Okay. That for ordinary occasions, what you do? What you are the things you do? जो साधारण से जो समय रहते हैं उस समय आप क्या करते हो? No, in your ordinary life, what are the methods you use? आपका जो ज़्यादा बॉक्स निकलता है पेटी का, Dress. पेटी का नहीं, एप्पल का बॉक्स more apple boxes are coming at home, so good production. फ्रॉम माय गार्डन। Okay. Type of dress you wear, कैसे कपड़े आप धारण करते हो? type of watch you wear, कैसी घड़ी आप पहनते हो? mobile you have. जो मोबाइल आपके पास है, You are spending a lot of money on all this. और आप बहुत धन खर्चा करते हो इसके ऊपर। Ah. Expensive marriage, और महंगी expensive शादी, parties. महंगी पार्टियां। When you go with your friends, you pay the bill. और जब आप दोस्तों के साथ जाते हो तो आप बिल भर देते हो। Ah. Okay, what is marriage problem? शादी की समस्या क्या है? He was willing to come ये आने के लिए तत्पर था for the wedding party. शादी And the party. पार्टी के लिए। In between he got married. उसके बीच में इसकी शादी हो गई। He told his wife, there is a party like this, shall we go? इसने अपने पत्नी को कहा एक ऐसे पार्टी रखी गई है, क्या हम जाएं? ഞാനെങ്ങും വരുന്നില്ല. मैं कहीं पे भी नहीं आ रही। Now can he go? क्या वो जा सकता है फिर? Big fight will be there. एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। So he has to please his wife. तो फिर अपने पत्नी को उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। So he didn't go. फिर वो गया नहीं। So what happens here? तो यहाँ पर क्या हो गया? Social obligations. और जो है सामाजिक प्रतिबद्धता, Pleasing people. लोगों को प्रसन्न करना। Who needs people around them? किसको चाहिए लोग अपने चारों ओर? Who needs people around? किसको चाहिए लोग अपने चारों ओर? जो अकेला है। What are the things you are doing to remove your loneliness? अपने अकेलेपन को हटाने के लिए आप किन चीजों को कर रहे हो? Hmm? Social media. सामूहिक मीडिया। What do you do to remove your loneliness? Eh? Reading. पढ़ना। Then. Eh?
That is the problem. That is the problem. Again going back to that. Marriages, no. कई शादियां करना. Yes. What are the other methods to remove? और कौन कौन से विधियां हैं हटाने के लिए? Phone call, talking, chatting, फोन में बात करना, चैटिंग करना, roaming. और जो है यहाँ वहाँ घूमना. You go to friend's room and sit there, then they had to throw you out. और आप जाके दोस्त के कमरे में बैठ जाती हो, फिर उनको धक्का मार के आपको निकालना पड़ता है. You go to another room. फिर आप दूसरे कमरे में चले जाते हो. Finally, अंत में do you go to your room? फिर क्या आप अपने कमरे में जाते हो? You're afraid to go there. आप अपने कमरे में जाने से डरते I'm हो all alone. क्योंकि मैं अकेला हूँ. People are there who are roaming all the time. और लोग जो ऐसे जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं. Roaming is done by phone now. और अभी जो है रोमिंग या घूमना फिरना है फोन के द्वारा होता है. Morning till evening you have to be on phone. और सुबह से लेकर शाम तक आपको फोन में रहना है. If somebody doesn't call you, what will you do? अगर आपको कोई फोन ना करे तो आप क्या करोगे? Send a missed call and make them call. एक मिस कॉल आप दे दोगे उसको और बुलाने को. And when they call, what do you say? जब वो आपको फोन बुलाएगा तो आप क्या कहोगे? Shout at them. Why are you not और calling? फिर चिल्लाओगे क्यों नहीं फोन कर रहे हो? What else you do to remove your loneliness? आपके अकेलेपन को हटाने के लिए आप और क्या करते हो? Involve in ministry. सेवकाई में जुड़ जाते हो. Gather people around you. लोगों को इकट्ठा करो अपने चारों ओर. These are some people who make jokes anywhere. और ऐसे जो लोग होते हैं जो कहीं पर भी मजाक करते हैं. Immediately there will be some people around you. और Some fools. तुरंत जो है कुछ मूर्ख लोग वहां पे इकट्ठा हो जाएंगे. Every time, anywhere, they will be waiting for, is that man coming? और वो इंतजार करेंगे क्या ये वो व्यक्ति आ रहा है कि नहीं. Okay. Now what happened? क्या हुआ? The Lord told 24th verse. और प्रभु ने कहा 24वां वचन. For I tell you, not one of those men who were invited will enjoy my banquet. So what are these three problems? क्या है ये तीन समस्या? Insecurity, impurity, loneliness. Whose problem? किसकी समस्या है? Every man, every woman separated from God has these three problems. हर पुरुष हर स्त्री जो परमेश्वर से अलग हो गया है उसको ये तीनों समस्याएं हैं. Do you have them? क्या आपके पास है ये? So what are these three? फिर ये तीन क्या हैं? What do you call that? उसे आप क्या बुलाते हो? No. Self-salvation. खुद को बचाना. The feast is salvation prepared by God. और जो भोज है उद्धार जो प्रभु के द्वारा तैयार किया गया है. So, they were trying to save their life. They lost what God has prepared. वो अपने जीवन को बचाने की कोशिश में थे और वो खो दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए बना के रखा था. Which verse comes to your mind? कौन सा वचन आपके दिमाग में आता है? Yesterday we studied. कल हमने उसका अध्ययन किया है. No, that's true. Eh? Luke 9:24. लूका 9:24. For whoever wants to save his life will lose it. Read it, read it. For whoever wants to save his life will lose it. Can you all read together? क्या सब एक साथ उसे पढ़ सकते हैं हम लोग? For 26, 25, 25. 25. Remember, these people, because they did not go for the party, they were not starving. और याद रखें ये जो व्यक्ति लोग हैं वो लोग भोज के लिए नहीं गए तो वो लोग भूखे नहीं थे. What did they have at home? उनके घर में क्या था? Enough food. काफी खाना. Very successful people. बहुत ही सफल व्यक्ति.
like Solomon, सुलेमान के समान, but he lost this. लेकिन उन्होंने उद्धार को खो दिया। Operation successful, ऑपरेशन जो है सफल रहा, patient मरीज died. मर गया। You want to be that patient? क्या आप वो मरीज होना चाहते हो? The Lord says this is what is happening. और प्रभु कहता है यही जो है घटित हो रहा है। Pastor had all the money पासवान के पास जो पूरा पैसा था, and he had no water. उसके पास पानी नहीं था। For afternoon lunch he is giving you grass. और दोपहर के भोजन के लिए वो आपको घास देने वाला है। Is it enough? क्या वो काफी है? Now we are satisfied with grass. हम जो हैं तृप्त हैं घास के साथ। What are you building up all these years? इतने साल तक आप क्या खड़े कर रहे थे? Grass. घास। You thought you are very smart. आपने सोचा कि आप बहुत सियाने हो। I don't know whether you have accepted it's a failure. और आप क्या आपने ये स्वीकार किया है कि ये एक हार है? मुझे मालूम नहीं। Suppose you had nice lunch and your stomach is full to the brim. मान ले कि आपने अच्छा एक भोजन खाया और पूरी तरीके से गले तक आपका पेट भर गया है। Okay. Now, at that time, he brings one chicken biryani for you. उस समय ये एक चिकन बिरयानी आपके लिए लेके आते हैं। Will you have temptation to eat? क्या आपको परीक्षा होगी वो चिकन बिरयानी खाने की? Eh? Or you will have to pray now, Lord, क्या give me grace to say no to this biryani, Lord. प्रभु मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं इस बिरयानी को ना कह सकूं। You will pray. क्या आप ऐसा प्रार्थना करोगे? What will you say to him? आप क्या कहोगे उससे? Thank you, I don't need it. धन्यवाद, मुझे ये नहीं आवश्यकता नहीं है। Why? क्यों? Why? If husband and wife are satisfied with each other, अगर- will there be adultery in the house? अगर पत्नी पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट हैं तो क्या उस घर में व्यभिचार होगा? No. If children are satisfied at home, will they run after wrong friends? अगर बच्चे घर में संतुष्ट हैं तो क्या वो गलत दोस्तों के पीछे जाएंगे? If you are satisfied in the love of Christ, will you run after the world? अगर आप मसीह के प्रेम में संतुष्ट हो तो क्या आप संसार के पीछे दौड़ोगे? Why are you running after them? क्यों आप उनके पीछे दौड़ रहे हो? Your relationship with Christ is only theory. क्योंकि आपका जो मसीह के साथ जो रिश्ता है वो सैद्धांतिक है, It's not reality. वो सच्चाई नहीं है। Many Christians are married to Christ, बहुत मसीह लोगों ने मसीह से विवाह किया है but are not satisfied with him. लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, So committing adultery with the world. तो फिर वो संसार के साथ व्यभिचार करते हैं। Will adulterous people enter kingdom? क्या व्यभिचारी लोग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? No. Now look at your life. अब अपने जीवन की ओर देखें। Sir, what to do now? सर अब क्या करें? I have been trapped in all these things. मैं इन सब चीजों में फंस गया हूं। क्या करना? क्या करना? What to do? क्या करना है? I got married. I have children. I have car. I have mobile. I have job. Everything is there. Now what to do? मैंने शादी किया है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, अब मैं क्या करूं? Lord, it's very difficult. प्रभु ये काफी मुश्किल है। What to do, ma? क्या करना है बहन? கல்யாணம் பண்ணியாச்சு, பிள்ளையும் ஆச்சு, வேலையும் கிடைச்சிருச்சு, சம்பளம் வந்துட்டு இருக்கு, என்ன செய்யறது? शादी भी कर लिया, बच्चे भी हैं, तनख्वाह भी आ गई है, क्या करें? என்னமோ செய்யறது? क्या कर सकते हैं? What to do now? क्या करना है अभी?
Do you know what the Lord said? क्या आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? 26th verse. 26वां वचन। Now great crowds were if anyone comes to me and does Yeah, not, great crowd on 25 onwards. 25 से पढ़ दे। now great crowds were traveling with him. So he turned and said to them, Hmm. if anyone comes to me and does not hate his own father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Oh. To which problem he is giving an answer? किस समस्या का वो उत्तर दे रहा है? देखिए इधर. Look at here. यहाँ पर देखें, 26th verse we are reading. 26वां वचन हम पढ़ रहे हैं 1, 2, 3. Which problem he is giving an answer? और किस समस्या का वो उत्तर यहाँ पे दे रहा है? 1, 2, 3 में से Hmm? Which one? कौन सा? You move little, let them see. Which one? कौन सा? She says third. ये कह रही हैं तीसरा। All relationships सारे रिश्ते, where you have to please everyone. आप सबको आपको प्रसन्न करना पड़ता So है। what to do now? अभी क्या करना है? Hate. नफरत। Oh, very strong word. काफी कठिन शब्द है। What does it teach? क्या वो सिखाता है? Hate whom? किससे घृणा करो? Hmm. Turn and take. Hate your mother. अपने माँ And से mother घृणा will कर। say hate daughter. माँ कहेगी बेटी से घृणा कर। Hate your wife. अपने पत्नी से घृणा कर। Hate your children. अपने बच्चों से घृणा कर। Hate yourself. अपने आप से घृणा कर। Is husband said there? क्या पति वहां पे लिखा है? In the list is husband there? उस सूची में पति भी है क्या? Why? क्यों? Eh? He was telling to husbands. वो पतियों से भी कह रहा था। That's why your own life is mentioned. और आपका खुद का जीवन वहां पर दर्शाया गया है। पति परमेश्वर। Now, hate is a very strong word. घृणा जो है बहुत ही एक जो है सख्त शब्द है। Immediately you reject it. और तुरंत आप उसको इनकार कर देते हो। It's impossible. वो असंभव है। Now, what did he teach yesterday? कल उसने क्या सिखाया? Love one another. एक दूसरे से प्रेम रखो। Love your father and mother. अपने माता और पिता से प्रेम रखो। Honor them. उनका आदर करो। Love your wife. अपने पत्नी से प्रेम करो। Love your children. अपने बच्चों से प्रेम करो। Now what is he? अभी क्या कह रहा है? Cheh, what is this? ये क्या है? Completely confused. और पूरे दुविधा में है, एकदम Let me ask her. शंका में है। கல்யாணத்துக்கு முந்தி before marriage somebody comes and tells her do this, do this. शादी के पहले इनसे कोई आके कहता है ये कर, ये कर। What will you say? Let me ask my आप क्या कहोगे? parents. माता पिता से पूछने दो। அப்பா அம்மாட்ட கேட்கட்டும். माता पिता से पूछने दो। Now she is married. अभी वो शादीशुदा है। Now somebody comes and tells do this, do this. अभी और कोई आके कहता है ये कर, ये कर। Now who is coming and telling? Her own father is coming. और अभी उनका जो खुद का पिता आकर कह रहा है ये कर, ये कर। What will you tell? आप क्या कहोगे? बोलो। Let me ask my husband. मेरे पति से जरा पूछने दो। What does the father tell? पिता ने क्या कहा? Are you hating me? क्या तुम मुझसे घृणा करते हो? Why you are not obeying me? क्यों मेरी बातों का आज्ञा नहीं मान रहे? You have forgotten us? क्या हमें भूल गए हो? Do you hate him? क्या आप उनसे घृणा करते हो? No. नहीं। But why does it appear that he is hating you? फिर ऐसा क्यों दिखाई देता है कि आप उनसे घृणा करते हो? Because you are not obeying him. क्योंकि आप उनका आज्ञा नहीं मान रहे। Now, Arun is telling, अभी अरुण कह रहा है do this. ये कर। You are telling, let me pray and tell you.
आप कहोगे मैं प्रार्थना करके बताऊंगी, What will happen? क्या होगा? He becomes angry. और गुस्सा हो जाता है। Why? क्यों? You're not obeying me. क्यों आप मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे? What she said is right or wrong. जो इन्होंने कहा सही है या गलत? See, when you make decisions, who is the sender? जब आप निर्णय लेते हो तो मध्य में कौन है? I and my family. मैं और मेरा परिवार। I and my family. मैं और मेरा परिवार। No, Jesus Christ has to become the sender. और मध्य में जो है यीशु मसीह होना चाहिए। Now look at this. इसकी ओर देखेंगे। He wants you to get up 5 o'clock. और वो चाहता है कि आप 5 बजे उठें। You want to sleep till 7 o'clock. आप 7 बजे तक सोना चाहते हो। If you want to get up, you must hate yourself. अगर आपको उठना है 5 बजे तो अपने आप से घृणा करनी पड़ेगी। Getting up, you don't like it, you have to hate. और आपको वो पसंद नहीं है तो आपको घृणा करना पड़ेगा। But you are not hating, you are doing only obeying God. और लेकिन आप घृणा नहीं कर रहे, आप परमेश्वर But की आज्ञा inside का you पालन feel कर it रहे हैं। is अंदर आप क्या महसूस कर रहे हो? struggle. संघर्ष। Why? क्यों? If a child cries at 3 o'clock in the morning, will you wake up? अगर आपका बच्चा सुबह 3 बजे रोए तो क्या आप उठोगे? Why you don't hate it? क्यों आप उससे घृणा नहीं करते? Eh? Oh, love and affection. उससे प्रेम और उससे करीबीपन है। Do you have love and affection for Jesus? क्या आपको यीशु मसीह के लिए प्रेम और उससे करीबीपन है? Then why is it difficult to get up? तो फिर क्यों मुश्किल है आपको उठने के लिए? That's a problem. वो है समस्या। Your relationship is only superficial. आपका जो रिश्ता है वो केवल बाहरी है, दिखावापन है। You read that first day. और आपने वो पहले दिन पढ़ा। Read Psalm 119, 148 in Hindi. और भजन संहिता 119 का 148 तमिल बड़ी माँ. तमिल में भी पढ़ दें। 119, 148. 119 का 148। I think we didn't study it here. Appa. How is it in Hindi? कैसे है वो हिंदी में? मेरी आंखें रात के एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। खुल गई. खुल गई। Even if somebody kicks on you, you are not able to get up. और कोई आपको लात भी मारे ना तो आप उठ नहीं पाते हो। Why? क्यों? Do you love him? क्या आप उससे प्रेम करते हो? Eh? Love. You have to hate. In any decision making, you cannot allow anyone else to enter. और प्रेम करना है तो आपको घृणा करना पड़ेगा। कोई भी रिश्ते में आप दूसरे को प्रवेश करने नहीं दे सकते। One Brahmin girl, एक ब्राह्मण लड़की, she went for a EU meeting. और वो EU की सभा के लिए गई। Many years, many months she was slowly going to the Lord. और कुछ महीनों से ही वो परमेश्वर के पीछे चल रही थी मसीह में। Parents knew this and warned her. और उनके माता पिता ने ये बात को जाना, उसको चेतावनी दी। So she went for a EU conference. वो EU के कॉन्फ्रेंस में गई। That day she returned. तीसरे दिन वो वापस आई। 6 o'clock in the evening. 6 बजे शाम को, Raining. बारिश का समय। When she came home, जब वो घर आई, lights all switched off. जो पूरे जो है लाइट है वो बंद थे, Door closed. दरवाजा बंद था, All her belongings were outside और उसका जो भी सामान था वो सब बाहर पड़ा था in the rain. बारिश में। She knocked. उसने दरवाजा खटखटाया, They didn't open. उन्होंने खोला नहीं। She called her friend उसने अपने दोस्त को बुलाया and she went and stayed there. और अपने दोस्त के साथ वो जाकर रही। After that, she has never been able to go home. फिर उसके बाद वो कभी घर वापस जा नहीं पाई है। Did you suffer like that? क्या आपको ऐसी कुछ पीड़ाएं हुई हैं? I mentioned a girl was on the run for 13 years,
Muslim girl. मैंने आपको बताया था कि एक जो मुस्लिम लड़की है वो 13 साल से भाग रही थी One of my friends, very close friend, he was sleeping in the park for 3 days. और मेरा एक करीबी दोस्त जो है पार्क में 3 दिन से सो रहा He did था। not even paste. उसके पास जो है पेस्ट भी नहीं था। Parents closed the door. उसके माता पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। When the father died, he went there. उसका जब पिताजी मरा तो वहां पर गया वो, Mother opened the door and saw him close the door. और माता ने दरवाजा खोला, उसको देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। Are you willing to suffer? क्या आप जो है पीड़ा या दुख उठाने को तैयार हो? Unless you hate, जब तक आप घृणा ना करो you cannot follow Christ. आप मसीह के पीछे नहीं चल सकते। A daughter tells, Daddy, I have a calling, I want to go for full-time work. एक बेटी बोलती है कि पापा मुझे बुलाहट है और मैं पूर्ण समय सेवकाई में जाना चाहती हूँ। ಇದನ್ನ പഠിപ്പിച്ചേ क्या इसके लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया? കാശൊക്കെ ചെലവാക്കിയാ നീ പോവുക और पैसा खर्चा करके और तू जा रही है? ആട്ടിച്ച് നിന്റെ നടുപൊടി मार के ना तेरा मैं जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा। Then I am not going. ठीक, फिर मैं नहीं जा रही। She is pleasing whom? वो किसको प्रसन्न कर रही है? Father. पिताजी को। How many of you have stopped in the various places? आप में से कितने लोग ऐसे अलग अलग स्थानों में रुके हो? Do you want to follow? क्या आप पीछे हो लेना चाहते हो? Honor from man, you will not be able to follow. अगर मनुष्यों से आदर चाहिए तो आप पीछे नहीं हो सकते हो। Do you know that you have been given a greatest honor? क्या आपको मालूम है आपको सबसे महान आदर दिया गया है? Are you satisfied with that? क्या आप उससे संतुष्ट हो? Even if you reject it, doesn't matter to me. अगर वो इनकार भी कर दे तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। I know I am the child of the King of Kings. मुझे मालूम है कि मैं राजाओं के राजाओं की संतान हूँ। 33. 33। In the same way, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। The answer is for which problem here? One or two? और यहाँ पर जो उत्तर है वो कौन सी समस्या के लिए है? एक या दो? One. एक। Okay. What to do now? अब क्या करना है? क्या करना है? सब कुछ? Now he has kept his mobile there. उन्होंने अपना मोबाइल यहाँ पे रखा है। I take this mobile and go home. मैं ये मोबाइल को लेके घर चला जाता हूँ। What do you call that? उसे आप क्या कहोगे? Borrowed. चोरी। Story. I am a thief. मैं एक चोर हूँ। If I am caught with this property, अगर मैं इस संपत्ति के साथ पकड़ा गया what should I do? तो मुझे क्या करना है? Return it to the owner. मालिक को मैं वापस कर दूं। Agreed? सहमत? Agreed? सहमत? No. नहीं। Oh, they said one need not return. वो कह रहे हैं कि वापस करने की जरूरत नहीं है। Okay, we have to return. हमें वापस करना है। All that you have now, आपके पास जो कुछ है who gave it? किसने दिया है? God. परमेश्वर। Who gave? किसने दिया है? God gave. परमेश्वर ने दिया है। You say that, no? आप कहते हो ना परमेश्वर ने दिया। Everything is God given. सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। Who gave? किसने दिया है? Say loudly. जोर से कहें। Eh? God. But now you say what? अभी क्या कहते हो आप? It's mine. ये मेरा है। What do you call that? उसे क्या कहते हैं? Stealing. चोरी। What should you do with stolen property? और आप जो चोरी किए हुए माल से आपको क्या करना है? Return it to the owner. इसे मालिक को वापस कर दें। Suppose Arun is working in a bank, मान ले कि अरुण एक बैंक में काम करता है cashier, और वो कैशियर है, big bank.
बड़ा बैंक है He handles crores of rupees in a day. और वो करोड़ों रुपए को अपने हाथ अपने द्वारा वो उसको संभालता है। In the evening, how much he can take home? शाम को वो कितने पैसे वो अपने घर लेके जा सकता है? Eh? 1 lakh. 1 लाख लेके जा सकता। How much he can take? कितना लेके जा सकता है शाम को? Eh? Then all the money belongs to whom? सब पैसा किसका है? Hmm? Bank. But who was controlling everything? लेकिन कौन नियंत्रण में है इसके? It was in his hand, no? ये तो इसके हाथ में था ना। What do you call him? इसे क्या कहते हैं आप? Cashier, कैशियर steward. और जो सेवक। But that money does not belong to him. लेकिन वो पैसा उसका नहीं है। Yes? हाँ, The earth and its fullness belongs to whom? पृथ्वी Belong to whom? और उसकी संपूर्णता किसकी है? किसकी है? हैं? Gold and silver सोना और चांदी। is, says the Lord, mine. पर प्रभु कहता है ये मेरा है। Cattle on 1,000 hills और जानवर जो 1000 पहाड़ों में, is mine, says the Lord. वो मेरा है, प्रभु कहता So है। the earth and its fullness is God's. और पृथ्वी और उसकी संपूर्णता वो परमेश्वर की है। Now, you take everything and say it is mine. आप सब कुछ ले लेते हो और कहते हो ये मेरा है। Now you are staying in this campus. आप इस कैंपस में रह रहे हो Tomorrow you say this is mine and sit here. और कल आप बोलोगे कि ये मेरा है बोल के आप यहाँ पे बैठ जाओगे। What will the authorities do? और जो अधिकारी लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? Take you by the ear and throw you out. आपको कान से ऐसे पकड़ के ना बाहर फेंक देंगे। दिस इज क्रिश्चियन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन। They won't do like that. Then what they will do? They will smoke you out. वो आपको धुएं के समान बाहर निकाल देंगे। Bank cashier, can he take money? जो बैंक का जो कैशियर होता है क्या वो पैसा ले सकता है? What he can take? क्या वो ले सकता है? End of the month, the manager will give his salary. और महीने के अंत में जो मैनेजर है उसे पगार तनख्वाह देगा। Ah. Now, if God is trusting you, अगर परमेश्वर आप पर भरोसा रखे हुए है, 50,000 in your hand 50,000 आपके हाथ में है every month. हर महीने, You are a cashier. आप एक कैशियर हो, Then you must ask, what is my salary? फिर आपको पूछना है कि मेरी तनख्वाह क्या है। Okay, you take 5,000. आप इसमें से 5,000 ले लो। How much is remaining? कितना बाकी बच गया? Is it yours or God's? ये क्या ये परमेश्वर का है कि आपका है? Eh? Whose? किसका है? The sound doesn't come loudly. आपका आवाज जो है ना थोड़ा उठ के नहीं आ रहा है। Do you know what we do? मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं? We give 500 for God. हम 500 परमेश्वर को दे देते हैं For expense you keep it. और आप अपने खर्च के लिए ये रख लो And you take the rest of it. और बाकी जो बचा हुआ आप ले लेते हो। Take all the money and give the manager 100 rupees per month. आप सारा पैसा आप खुद ले लेते हो और महीने में एक बार 100 रुपए मैनेजर को देते हो। You cannot. ये नहीं कर सकते। Everything God gave. सब कुछ परमेश्वर ने दिया, It doesn't belong to you. ये आपका अपना नहीं है। Never trust in it. इस पे आप पे भरोसा ना रखें। Only what God permits you can take. और जो परमेश्वर अनुमति देता है वही आप ले सकते हो। So, if you will not give up your ownership, अगर आप अपने मालिकपन को नहीं छोड़ोगे, you cannot follow him. आप उसके पीछे नहीं हो सकते। If you will not, you cannot. अगर आप इच्छा नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकते। Are you writing and keeping? क्या आप इसे लिख कर रख रहे हो? It's not acceptable to you, so you are not writing. ये आपके लिए स्वीकृत नहीं है इसलिए आप नहीं लिख रहे हो। If you will not give up the ownership, you cannot follow him. अगर आप मालिक बनने को नहीं छोड़ोगे, आप उसके पीछे नहीं हो सकते।
Do you want to follow Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के पीछे होना चाहते हो? What will happen to those who want to become rich? क्या होगा उनके साथ जो धनवान बनना चाहते हैं? To catch big animals, you make big pit और बड़े जानवर को पकड़ने के लिए आप बड़ा गड्ढा बनाते हो and you cover it up. और आप उसे ढक देते हो The animal comes and falls in. और जानवर आके उस गड्ढे में गिर जाता है। Smaller animals, you keep a trap. और छोटे जानवरों के लिए आप एक जाल बिछाते हो। Now you read from 1 Timothy chapter 6. पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 9th verse. 6 का 9। पहला तीमुथियुस 6 का 9। पर जो धनी होना चाहते हैं Hmm. वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। falls in and get trapped. उसमें गिर जाते हैं और फंस जाते हैं। Now, if an animal is trapped in a trap, have you seen animals get trapped? आपने देखा है कि जानवर जो है फंदे में फंस जाते हैं। Not seen directly, but It'll try to go like this, और वो ऐसे जाने की कोशिश करेगा go round and round. और वो गोल भी घूमता रहेगा The leg is caught. और उसका पैर पकड़ लिया गया है। You have seen the rat going in the trap? आपने देखा है चूहा कैसे जो है फंदे में घूमता रहता है। Trapped. फंदा। Elephants fall into big pits. और हाथी जो है बड़े गड्ढों में गिर जाते They हैं, cannot come out. वो बाहर नहीं आ पाते Your life is over, you become life is over. और आपका जीवन खत्म हो गया है, आपका जीवन खत्म हो गया है। Those who want to become rich. जो धनवान होना चाहते हैं। Next verse. अगला वचन। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर। Now, you are going by faith in this direction. आप विश्वास के द्वारा इस छोर की ओर जा रहे हो। Now what happened? अब क्या हुआ? You deviate from faith. आप विश्वास से भटक जाते हो। You don't walk by faith, you walk by sight now. आप विश्वास से नहीं चलते, दृष्टि से चलते हो। You are deviated from faith. आप जो है विश्वास से भटक गए हो। Do you know why the Lord said those who want to become rich will not enter the kingdom of God? क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? जो धनवान बनना चाहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। He didn't say those who want to become rich, those who are rich. उसने ऐसा नहीं कहा जो धनवान हैं, ऐसा कहा। Pit, trapped, deviate. गड्ढा और अपना फंदा और भटक जाना। Has it happened already? क्या ये पहले ही हो चुका है? What happened? क्या हुआ? So what to do with this? इससे हमें क्या करना है? Properties, possessions, और जो जायदाद है और पैसा है, give it to the owner. इसको मालिक को सौंप दें। Give it to the owner. इसको मालिक को सौंप दें। If you give the money into the hand of manager, you can go and sleep. अगर आप जो पैसा मैनेजर के हाथ में दे दोगे तो आप जाके सो सकते हो। If you take it, अगर आप पैसे को लेके जाएं तो you cannot sleep. आप सो नहीं पाओगे। What are the things you are possessing? आप किस किस चीजों को आप अपना बनाए रखे हो? If you hold something tight, अगर आप किसी चीज को जकड़े रहोगे, it takes hold of you. वो आपको जकड़ लेता है। If you hold something, अगर आप किसी चीज को जकड़े रखते हो, it takes hold of you. वो आपको जकड़ लेता है। You cannot receive anything further. फिर आप ज्यादा और उस पा नहीं पाते हो। You cannot follow Christ also. फिर आप मसीह के पीछे भी नहीं हो सकते हो। You are trapped. आप जो एक जाल में हो। What is trapping you? आप क्या है आपको फंदे में डाल रहा है? Is it a friendship? क्या ये दोस्ती है? Is it little gold? क्या ये थोड़ा सोना है? Is it few more apples? क्या ये थोड़े और सेब हैं? One more bag
एक और जो है झोला, Oh, can I have one more bag? क्या एक और झोला मेरे पास हो जाए? Little more salary, थोड़ा सा और मेरा तनख्वाह, little more overtime, थोड़ा और ज्यादा काम करना, little more deposit. थोड़ा और जो है जमा राशि Trapped. फंदे में। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? You read when you go back, 8th chapter of Deuteronomy. व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय पढ़े जब आप वापस जाओ, Okay. And he says what will happen. और वो वहां पे लिखा है कि क्या होता है, Okay. What to do with wealth, he says. और धन के साथ क्या करना है वो बताता है, Give the ownership to God. और उसका जो मालिक हक है वो परमेश्वर को दे दो। This money belongs to whom? ये जो 45,000 रुपए हैं किसके हैं ये? You need not bother about it. आपको इसके बारे में चिंता नहीं Whatever करनी he है। tells, do that. जो कुछ वो कहता है उसे आप करें। You are a cashier. आप जो है कैशियर हो। To such people, God says, I may give 100 times more in their hands. और ऐसे लोगों को के बारे में प्रभु कहता है कि मैं सैकड़ों गुना ज्यादा उनको दूंगा। Amy Carmichael handled 500 times more. और एमी कार्मेल ने जो है 500 बार से भी अधिक ज्यादा चीजों का उसने अपने हाथों में इस्तेमाल Pandita किया। Ramabai handled 500 times more. और पंडिता रमाभाई ने भी 500 से भी अधिक ज्यादा चीजों का इस्तेमाल किया, But she did not own even a nail there. लेकिन एक कील भी उसने अपने नाम पर नहीं रखा। If you want to follow, अगर learn आपको from Jesus Christ. पीछे होना है तो Learn from Jesus. यीशु मसीह से सीखें। Now, 27. 27वां वचन, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा भी चेला नहीं हो सकता। वो भी मेरा। वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Now, you have hated everyone. आपने सबसे घृणा किया, You have given up everything. आपने सब कुछ छोड़ दिया, Now you put a cross on your shoulder and walk through your streets. और आप जो है क्रूस को अपने कंधे में रखकर गली से चलते हो। Hey, are you listening? क्या आप सुन रहे हो? You hated everyone आपने सबसे घृणा की, and you have given up everything. आपने सब कुछ छोड़ दिया, Put a cross on your shoulder and walk through your street. और जो है आप क्रूस को अपने कंधे में रखकर गली से चलते हो। What name they will give you? वो आपको क्या नाम देंगे? Fool, mad. मूर्ख, पागल। What will happen to your status? आपका स्थान का क्या होगा? Eh? What will happen to your status? आपका स्थान का क्या होगा? That false self-image you build must be removed. जो गलत आपने खुद की छवि बनाई है उससे I have हटाना है। been crucified, it is no more I. और मैं जो है क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं, It's Christ who lives in me. मसीह जो मुझ में जीवित है। Unless you are willing to walk like that, you cannot follow me. जब तक आप ऐसा चलने की कोशिश नहीं करते आप उसके पीछे नहीं हो सकते, Otherwise, you will be building a status and sitting there. और नहीं तो आप जो है एक स्टेज बनाकर उस पर आप बैठे रहोगे। How to climb the ladder? कैसे सीढ़ी को चढ़ना है? You cannot follow Christ. आप यीशु मसीह के पीछे नहीं हो सकते। You must know your true identity. आपकी सच्ची पहचान को आपको जानना है। And the child of the Most High God. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं। Which is big, 10,000 or 10? कौन सा है बड़ा, 10,000 की 10? Mountain or a mole, which is big? पहाड़ी बड़ा है कि मॉल बड़ा है? Mountain. Skyscraper or hut? ऊंची ऊंची इमारतें या झोपड़ी? Big tree or a bush? बड़ा पेड़ या झाड़ियां? Elephant or rat? हाथी या चूहा? Okay. God or man? मनुष्य या परमेश्वर?
How many of you think God is great? कितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर महान है? Why? Whom are you afraid of, man or God? आप किससे डरते हो, मनुष्य से या परमेश्वर से? Tiger or rat, which is big? और जो बाघ या चूहा कौन सा बड़ा है? You are afraid of tiger or आप rat? बाघ से डरते हो? Man or God? Who is great? मनुष्य या परमेश्वर कौन है बड़ा? Eh? Whom are you afraid of? आप किससे डरते हो? Both. Which is more? कौन सा ज्यादा है आपके अंदर? John 5:44. यूहन्ना 5:44। यूहन्ना 5:44। How can you believe while accepting glory from one another, you don't seek the glory that comes from the only God? Hindi. तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? Do you believe in God? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? What do you believe? क्या आप क्या विश्वास करते हो? He is smaller than man. वो मनुष्य से छोटा है। Is he greater than man? क्या वो मनुष्य से महान है? Theory or practical? सैद्धांतिक या प्रयोग में? You tell a lie because you are afraid of God or man. आप एक झूठ बोलते हो, आप किससे डरते हो, मनुष्य से या परमेश्वर से? Do you believe in God? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो? What belief? क्या विश्वास है ये? Do you see I am sitting now? क्या आप देख रहे हो कि मैं अभी बैठा हूं? I am sitting. मैं बैठा हूं। That's what you are saying. God is great. I am afraid of man. और आप कहते हो परमेश्वर महान है, मैं मनुष्यों से डरता हूं। Is there any truth in it? क्या इसमें कोई सच्चाई है? Do you believe in God? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो? Where? Luke 12:4 and 5. लूका 12:4 और 5। You are having more and more problem now. अभी और समस्या होने वाली है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। Who is that? वो कौन है? उसमें मत डरो. Another person read next verse. दूसरा व्यक्ति अगला वचन पढ़ेगा। मैं 5. चिल्लाता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। Who is that? वो कौन है? मनुष्य. God. Who is great? कौन महान है? Man or God? मनुष्य की परमेश्वर? Whom are you afraid of? आप किससे डरते हो? Strange beliefs. और ये बहुत ही अनजान से विश्वास। So, this treasure on earth and treasure in heaven is not a small subject. और जो स्वर्ग में जो धन है और पृथ्वी में जो धन है वो छोटा विषय नहीं है। It's involving the whole life. ये पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। What can man do? मनुष्य क्या कर सकता है? 4 things. 4 चीजें। He can frown at you. Angry, frown वो at you. आपसे गुस्सा हो सकता No, है। frown. Look at you with anger. वो आपको जो है गुस्से से आपको देख सकता है। He can shout at you. वो आप पर चिल्ला सकता है। He can slap you. वो आपको मार सकता है। He can kill you. वो आपको हत्या भी कर सकता है। He cannot do anything more. वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता। Is that not enough, you will say? क्या आप बोलोगे ये काफी नहीं है क्या? Unbearable. ये असहनीय है। But what can God do? लेकिन परमेश्वर क्या कर सकता है? Your body and soul, He can cast you into hell. आपके शरीर और प्राण को वो नरक में डाल सकता है। Whom should you fear? आपको किसका भय खाना है?
rat or lion? चूहा या शेर? Chua. But you are afraid of whom? लेकिन आप किससे डरते हो? All the running after the honor from man is because of the fear of man, whether he should reject me or not. और ये पूरी जो दौड़ है मनुष्य से आदर पाने के लिए कि ये डर आपके अंदर है कहीं मनुष्य मेरा इनकार ना कर दे। What to do now? आप क्या करें? With that fear, can you follow him? क्या आप इस डर के साथ उसके पीछे चल सकते हो? You can learn everything, sing songs and sit where you are. आप कुछ बातों को सीख सकते हो, गीत गा सकते हो और जहां बैठे हो बैठे रह सकते हो। Why does he teach these two things for the people? क्यों उसने ये दो बातें जो हैं लोगों को सिखाई? In Luke 12, लूका 12 में 4 and 5. Why does he teach? 4 और 5 क्यों सिखाई? Verse 1, last part. पहला वचन उसका अंत का भाग। Beware of the leaven of Pharisees, which is hypocrisy. Hindi. फरीसियों से पढ़ो, फरीसियों। हाँ, फरीसियों से पढ़ो। फरीसियों के कपड़ों की खमीर से चौकस रहना। Why? क्यों? What is hypocrisy? क्या है कपटीपना? What are the other words for hypocrisy? और पाखंड के लिए दूसरे और शब्द कौन से हैं? Gaman. हाँ, वाइट वॉश टूम्ब No, what are the other words usually? Pretension. और बनावटीपन। Then पाखंड के लिए और कौन से शब्द हैं? putting a mask. मुखौटा पहनना Then और makeup, सजावट, acting. नाटक, Then lying. झूठ। All we do because of what? ये सब हम क्यों करते हैं? किसके कारण? Fear of man, fear of God. मनुष्य का भय कि परमेश्वर का भय? Fear of man. मनुष्य का भय। You buy everything from the supermarket because of honor from man, honor from God. आप सुपर बाजार से सब कुछ खरीदते हो मनुष्य से आदर के कारण कि परमेश्वर से आदर के कारण? So you have to spend a lot of money. तो फिर आपको बहुत पैसे खर्चे भी करने पड़ेंगे। So you have to make more money. तो आपको बहुत पैसा बनाना भी पड़ेगा। All your time you have to be in the workplace. आपको सारा समय काम के क्षेत्र में रहना पड़ेगा। And you don't have time for anything else. और आपके पास फिर दूसरे किसी चीज के लिए समय नहीं है। Who has trapped you? किसने आपको फंदे में डाल दिया? Devil came and said, man is great than God. और शैतान ने आकर कहा मनुष्य परमेश्वर से बड़ा है। Man can do everything, brother. भाई मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है। God is not there. और परमेश्वर तो है ही नहीं। Now you began to worship man. तो आप फिर मनुष्य की आराधना करने लगे। And rejection from man became a big problem. और मनुष्य से इनकार मिलना एक बड़ी समस्या बन गई। Now day and night you are running after that. और रात और दिन आप जो है इसके पीछे भाग रहे हो। All those who fear man जो कोई मनुष्य से डरता है are actually atheists. वो जो है नास्तिक हैं। They are atheists. वो नास्तिक हैं। Maybe refined atheists. थोड़ा सा शुद्ध किए हुए नास्तिक। They are telling there is no God. वो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। They have a God of their imagination. उनको अपनी कल्पनाओं का परमेश्वर है। So what to do now? तो अब क्या करना है? What to do? क्या करें? Read 2 more verses. We'll go back and come again. हम 2 और वचनों को पढ़ेंगे फिर जाकर वापस आएंगे। Luke 14, लूका 14 28 to 30. 28 से 30। For which of you wanting to build a tower doesn't first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? Otherwise, after he has laid the foundation and cannot finish it, all the onlookers will begin to make fun of him, saying, "This man started to build and wasn't able to finish."
Years back, when somebody invited you to follow Christ, सालों पहले जब किसी ने आपको आमंत्रण दिया यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, they didn't tell me all these things. उन्होंने मुझे ये सब बात नहीं बताया. They all said, raise your hand, उन्होंने कहा कि अपने हाथों को उठाओ, go and fall into the water. जाके पानी में डुबकी मार लो, You're all right. आप ठीक ठाक हो. Now they didn't tell me this. उन्होंने मुझे ये सब नहीं बताया. But you had the Bible to read it. Why didn't you read लेकिन it? आपके पास तो बाइबल था पढ़ने के लिए, आपने क्यों नहीं पढ़ा? Come to church regularly. I will give you a certificate. You will go to heaven. और कलीसिया में निरंतर आओ, मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा कि आप स्वर्ग में जाओगे. Permanent residence. और आप जो है आपके हमेशा की नागरिकता, Nobody can pluck you out. आपको कोई भी उखाड़ के नहीं फेंक You can do सकता. whatever you want. आपको जो करना है आप कर सकते हो. I should have not come for this seminar. मुझे ये सेमिनार में नहीं आना चाहिए था. I would have been happily living. मैं बहुत ही खुशी के साथ रह सकता था. What to do now? अब क्या करें? He says, before following me, sit down and calculate the cost involved. और मेरे पीछे होने के पहले बैठ और जरा लेखा जोखा कर कि कितना खर्चा बैठेगा. If you had told this already, we would have not come. अगर आपने पहले ही ये बता दिया होता तो हम पीछे नहीं आते. இந்த முட்டாத்தனம் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன். ಈ ಮಣ್ಣತನ ಜಯತಿಲ್ಲ. और ये जो बेवकूफ़ी मैं करता नहीं. Do you feel so? क्या आप ऐसा सोचते हो? Is there a milder variety of Christianity? क्या इस थोड़ा सा हल्का, इससे भी हल्का कोई मसीहत है क्या? हल्का, इससे भी थोड़ा हल्का वाला. Light version. हाँ, हल्का वाला. ये तो भारी हो गया, थोड़ा हल्का. Yes, devil has many versions. और शैतान के पास बहुत सारे वर्षन हैं. The Lord Jesus Christ, only one gospel. प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही सुसमाचार. If you are not willing, you cannot follow me. अगर आप इच्छुक नहीं हो तो आप मेरे पीछे नहीं हो सकते. Shall we go for lunch? क्या हम खाना खाने के लिए जाएंगे? At least something we can happily do. तो कम से कम कुछ तो हम आनंद के साथ कर सकते हैं. Shall we be silent? क्या हम शांत रहेंगे?